Okay, students, next time what we have done. कहाँ तक हुआ था? I think activity number 5.9 is over, isn't it? Okay, so we will do activity number 5.8 is over, 5.9 we have to do. So we'll continue with that. Let me start the textbook, open the textbook. Yeah. Yes. So activity number 5.9 is that what is the question over here? Examine the element of third period and classify them as metal and non-metal. Right now, first of all, we have to write the element of third period. Third period, if you see this right now, what is third period? Right. So this is our first, second period, and this is our third period. So, which kind of elements are there in third period? Sodium is there, magnesium is there, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. So these are the elements which are present in third period. So we will write that what which elements are there in third period. So I have written over here. So in third period we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Understood? Now we have to examine them and classify which are metal and which are non-metal. Right? So how will you classify the element who are metal and who are non-metal? What is the property of metal? Do you know? What is the property of metal? What is metal? Do you know? Yes. Yeah, these are the properties right now. But if you want to classify the element into metal and non-metal, what property you will see right now? Here we can't predict that aluminum is sonorous, or here it is not mentioned right now. So on which basis we can classify? Masking that property. Are you getting my point? What I'm saying, that here it is not written that this aluminum is sonorous in nature, it is a good conductor, bad conductor, something like that. It is not given over here. Properties are not given. So on what basis we can classify these elements? Right? We have to classify na these elements. We have to classify into metal and non-metal. So on what basis we can classify? That I'm asking. Yes, B first. Yes. Or the on physical appearance? No, not. We will we will see the electronic configuration of these things right now. If you write the mm, if you write metals means element right now, element what is the atomic number of sodium is 11, atomic number of magnesium is 12, 13, 14, so on right now. So if you write third period right now, so it starts from 11 and it's ended up what 18 right now. So if you write the electronic configuration, you will see this right now. How to write electronic configuration, you all know that right now. I have already explained you right now. कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता है ना? यस प्लीज रिस्पॉन्ड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं पता है ना आपको? Okay, so here configuration is atomic number is 11, so I will write 2 comma 8 comma 1. Configuration is 16, so I will write 2 comma 8 comma 6 right now. So these are the valence electron, 1 2 3 4 6 right till 8. These are the valence electron. Outermost electron is called as valence electron. So these are valence electron. Now what is the property of element means metal? Metal loves to lose the electron. Metal loves to lose the electron, and non-metals are the element which loves to gain the electron. Right? मेटल क्या होते हैं जो
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी। सिंस right, we will see that why they are losing and gaining the electron. They want to make it octet. Right now what is octet? To complete their 8 electron in their outermost shell में 8 electron करने को हम लोग बोलते हैं octet. Why they are doing why they are trying to attain octet? Why they are trying to attain octet? Because of stability. In terms of electron in terms of element, the criteria for stability is what? Duplet and octet, right now स्टेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, डुप्लेट और ऑक्टेट करने को हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी। सो ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट their octet. So here what is the possibility over here, if you see right now, so here sodium has 1 electron in their outermost shell. So there is two possibility, either it can lose 1 electron or it can gain 7 electron. So lose 1 electron or gain 7, which is better and which is easy to gain or lose? So it is very easy to lose 1 electron, है ना, 7 electron लेने से अच्छा 1 electron देना easy है, right? So what it will do, it will lose electron, right now it will lose 1 electron instead of gaining electron. So because it is losing the 1 electron to become, अगर ये electron lose कर देगा तो ये गायब हो जाएगा shell, तो outer most में क्या आ जाएगा 2,8, तो outer most consists of 8 electron. So यहाँ पे octet complete हो गया. Similarly, here two valence electrons are there. So what it will do, it will lose 2 electron instead of gaining 6 electron. तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लूज करेगा 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय. तो बिकॉज अगेन it is losing 2 electrons, so therefore it is metal, right? Here also if you see 3 electrons are there, so there is a possibility to lose 3 electron or gain 5 electron, which is better, राइट ना. 5 इलेक्ट्रॉन लेके 8 करना बेटर है, या फिर इसको लूज करके यह आउटर मोस्ट में 8 करना ये बिजी है, 2,8 हो जाएगा, राइट? तो इट इज बेटर टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन. सो इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज हियर दे आर हियर means all these three elements are loves to lose these electrons, so therefore these are metal in nature. Now here if we talk about four outermost consist of 4 electrons, so here two possibilities are there, losing 4 electron, gaining 4 electron. So both are equal, right now both are equal. So this element shows what एक्चुअली क्या होता है, ये पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये था कि भाई इसको नॉन मेटल एंड मेटल में ही क्लासीफाई करना था, तो ये लूज करने की जगह गेन करता है. ऑब्वियसली अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर लूज करो या गेन करो, दोनों ऑप्शन आपके लिए इक्वल है, आपके लिए दोनों इक्वल. तो गेन करना इजी है, क्योंकि गेन करने से कुछ ना कुछ आएगा, आप नुकसान क्यों करेगा अपना, आप क्या करेंगे, गेन करेंगे. तो देयर फोर दिस कार्बन मेटल कार्बन सॉरी this carbon element, right? Na carbon, this is a carbon, no, silicon, sorry, second period, we are talking about third period, na. So third period silicon is there, so silicon, what silicon do, silicon instead of losing silicon gain the electrons, है ना. एंड 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अच्छा है ना, सिंपल सी बात है, मेरे पास 4 लाख रुपया है, 4 लाख देने के बाद भी स्टेबल हो जाऊंगा, 4 लाख लेने के बाद भी स्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख रुपया दूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, 4 लाख लूंगा, मेरे लिए 4 लाख लेना अच्छा है ना, तो मैं 4 लाख लूंगा. यहाँ पर ये गेन करता है एंड देयरफॉर दे आर नॉन मेटल. बट बाद में ये पता किया गया है कि वो लोग दोनों भी करते हैं, गेनिंग एंड लूजिंग करने के, या शेयरिंग कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, ना गेनिंग करता है ना लूजिंग करता है, क्या शेयर करता है. एंड सिंस दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर मेटलाइट, राइट ना, बिकॉज दे lose the electron as well as they gain the electron, since they are doing both of them. So therefore the property of silicon is what in between metal and non-metal, therefore they are metalloid in nature, right? Now in if you talk about remaining element, like remaining what phosphorus, sulfur, chlorine and silver, sorry, ये Ag लिखा हुआ है, this is wrong. Ag is not symbol for argon, Ag is symbol for silver, this is wrong. Ar should be there, symbol of argon is what, Ar. So uh, since if you see over here, right, these three element, right now, sorry, these three element 5 6 7, so these three element, what is the possibility over here, they can gain the electron, right? Now what is the possibility over here, they can gain the electron instead of losing electron, because 5 electrons are there, 6 electrons are there, 7 electrons are there,
5 6 7 electron, losing of 5 6 7 electron is very difficult, right now. So therefore instead of losing, they gain the electron, and since since they are gaining the electron, therefore they are non-metallic in nature. Since they are gaining the electron, therefore they are non-metallic in nature, and argon is non-reactive in nature, so we will not talk about it. Understood? Samjha? So so we have classified these elements on the basis of gaining and losing, right? Since sodium, magnesium, aluminum are consist of what, one, two, three electron in their outermost shell, so therefore they lose the electron and therefore they are metallic in nature. While silicon gain and lose both, they are silicon accept as well as lose electrons. So silicon दोनों काम करता है, therefore it is metalloid in nature, or we can say अगर दोनों में से एक की बात करेंगे तो वो बेटर करेगा कि वो गेन करना पसंद करेगा, एंड देयरफॉर नॉन मेटल में भी कभी कभार बुक में दिखाया जाता है. देन remaining element, if you talk about phosphorus, then sulfur, chlorine and other elements, so these elements consist of 5 6 7 electrons in their outermost shell. So uh, it is easy to gain electron instead of losing the electrons over here. So therefore this phosphorus, sulfur, chlorine gain the electron instead of losing the electron, therefore they are non-metallic in nature. Understood? Yes beta, understood or not? Respond me fast. समझा यहाँ तक है? Okay. Now, second question in your activity, what is given? Question number two: on which side periodic table do you find the metal? And question number three is on which side in periodic table you find non-metal? तो मतलब periodic table में metal कहाँ पर है और non-metal कहाँ पर है? तो obviously हम लोग जब आपके यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सोडियम मैग्नीशियम इस तरफ है, राइट, और यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन वगैरह यहाँ पर है. तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है हम लोग को? मेटल दिख रहा है. राइट साइड में क्या दिख रहा है? नॉन मेटल दिख रहा है. खाली वही एक प्रॉपर्टी नहीं, वही एक क्राइटेरिया नहीं है लूजिंग एंड गेनिंग का. दूसरा भी क्राइटेरिया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. साइज ऑफ एटम पे मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? साइज पे. साइज जितनी बड़ी रहेंगी, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी आगे बताऊंगा. चलो मैं आगे आऊंगा तो उसे बताऊंगा. फिलहाल के लिए हम लोग इसमें समझते हैं, बाद में हम लोग अगली एक्टिविटी में समझिएगा इसको. So since magnesium and sodium and aluminium are in left side, right now, so we can say left side is metallic in nature, while right side में क्या होता है? नॉन मेटल्स आर देयर. राइट साइड में नॉन मेटल है, लेफ्ट साइड में मेटल्स है, और ये जो बीच की लाइन है वो क्या है? मेटलॉइड है. ये क्या है? मेटलॉइड की लाइन है. ये नॉन मेटल है, और ये पूरे के पूरे क्या है? मेटल्स है. अंडरस्टूड? सो हम लोग यहाँ पे आंसर दिखाएंगे. वेयर डू यू फाइंड metal? So on the left side, where do you find non-metal? On the right side of the periodic table. Understood? So ये हम लोग ने हो गया एक्टिविटी नंबर, एक्टिविटी, which one activity? Activity number 5.9. Now for 5.10 activity, well, first we will do, first we will see the variation of metallic properties and non-metallic properties. First we will see what is metallic. First metal क्या होता है? अभी हमने देखा. What is metal? Metal is a the property of metal is what? Losing of electron. The element which radially lose the electron is called as what? Metals. And the element which radially gain the electron is called as non-metal. Right. So first we will talk about metallic property, and non-metallic property is opposite to metallic property. Right ना, जहाँ पे metallic बढ़ेगा वहाँ पे non-metallic क्या रंग कम हो जाएगा. मैं बताऊंगा आपको आगे. So फर्स्ट विल सी डाउन द ग्रुप. उल्टा नहीं पढ़ेंगे, पहले डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीरियड पढ़ेंगे. डाउन द ग्रुप, वी नो दैट व्हाट इज द कंडीशन ओवर डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप क्या होता है? वी नो दैट साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, राइट. as we know that as we move down the group, the number of shell increases. Since number of shell increases, therefore size of atom increases, right now. Now my question is that ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट समझो एग्जांपल, right. This is a nucleus, this is a nucleus, right now. Here one outermost electron is there, this is one outermost electron. My question is that which electron, this is the first element, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is the last element. लास्ट के लिए मैं सिक्स एलिमेंट लिखता हूँ समझो एग्जाम्पल, right. I'm talking about, I'm asking you
Which element can lose electron easily and why? सोच के बोलो बेटा, कौन सा एलिमेंट, पहला या छठा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और व्हाई? नो आइडिया? यस, नो आइडिया बेटा, रिस्पॉन्ड फास्ट, आइडिया है या नहीं? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, रिस्पॉन्स करो. So you should respond. No, I'm asking no idea, or do you have any idea what? If you have any kind of idea, no, you can ask. Means you can answer me. Otherwise, ask that, sir, I don't know anything about it. Okay. So here, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, because size is very less. Since size is very less, so the distance between nucleus and electron is very less, right ना? And distance is very less, so क्या होगा? न्यूक्लियस का पुल जो है इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा. ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत पुल करेगा. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुलिंग है न्यूक्लियस की, क्या है? स्ट्रॉन्ग पुलिंग है, राइट. अब पुलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है. तो देयर फोर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट ना? ये इलेक्ट्रॉन को निकलना या इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट रहेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट लास्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, राइट ना? डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग, लास्ट नीचे की तरफ वाले जो एलिमेंट रहते हैं उसकी साइज बड़ी होती है. एंड बिकॉज साइज इज वेरी लार्ज, so distance between the nucleus and electron, outermost electron is very large, right ना? यहाँ पर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा है. एंड ज़्यादा न्यूक्लियस का डिस्टेंस होने की वजह से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड रहेगा. कैसा रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा कैसा रहेगा? लूजली हेल्ड रहेगा, राइट. और बिकॉज ये लूजली हेल्ड है बेटा, मतलब क्या होगा? ये लूज है, मतलब लूजली हेल्ड है, कोई पकड़ा नहीं है उसको अच्छे से, तो अब इसको निकालना इजी रहेगा, इसको निकालना इजी रहेगा. तो देयरफॉर वी कैन से दैट in this case it is very difficult to lose the electron, in this case very easy to lose the electron. And because नीचे वाले एलिमेंट ज़्यादा इजीली यूज कर रहे हैं, therefore they are more metallic than upper one. So we can say that as we move down the group, the what the metallic character increases. Understood? Yes. What about other? एक ही स्टूडेंट है, रिस्पॉन्ड करो अगेन, वापस से रिस्पॉन्ड करो. रिस्पॉन्ड मी फास्ट. हिया, मैथिली, मनस्वी, स्वरांगी, युवराज. And what about the Yuvraj? Okay, so uh, so we have done with down the group, क्योंकि down the group में क्या होता है? As we move down the group, the metallic character increase. Why? कोई पूछेगा why? Because as we move down the group, the number of shell increase, which result into which result into increase in size, and as the size increases, the distance between nucleus and electron, outermost electron increases, and therefore uh, metallic character increases. Understood? नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसका जो होल्डिंग है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो जाता है. तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नीचे की तरफ वाला. और ऊपर की तरफ के एटम का साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा? वो क्या होगा? स्लोली, मतलब निकलने के लिए टाइम लेगा, राइट ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट टू राइट. याद रखना, जो प्रॉपर्टी राउंड द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है, वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे. मैंने बोला मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इट विल डिक्रीजेस. नाउ इसका आंसर देखते हैं, व्हाई इट डिक्रीजेस. तो समझो एग्जांपल, मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूँ. किसकी बात करता हूँ? सेकेंड पीरियड. इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड पीरियड ना, तो नंबर ऑफ शेल इज व्हाट? यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, पहले वाले के अंदर दो शेल रह गए, दूसरे के पास भी दो शेल रह गए. सिंस नंबर ऑफ शेल इज सेम, तो वी कैन से द साइज इज सेम. बट साइज सेम नहीं होती है. साइज मैंने पढ़ाया था अभी, ये साइज जो होती है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस. व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज हियर न्यूक्लियस चार्ज इन इंक्रीजेस, राइट ना? हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का चार्ज. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट,
न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। किसका बढ़ता है? न्यूक्लियस का चार्ज जो है बढ़ता है। यहाँ पे समझो एग्जाम्पल +2 है, तो यहाँ पे +10 रहेगा। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा? यहाँ पे +10 जो है वो उसको खींच रहा है। कितना खींच रहा है? +10 जो है खींच रहा है। यहाँ पे कितना खींच रहा है न्यूक्लियस? 2 चार्ज वाला न्यूक्लियस खींच रहा है, 2 वाला। तो बताओ कौन ज्यादा खींचेगा? +10 वाला खींचेगा ना? कौन ज्यादा खींचेगा? +10 वाला खींचेगा। तो इसका इसका जो अट्रैक्शन है, इसका पुलिंग जो है बहुत ज्यादा है। ये वाले केस में पुलिंग ज्यादा है, राइट साइड वाले की पुलिंग क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू दिस। पुलिंग ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली होल्डेड है। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट रहेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका पुलिंग कम है उसको निकालना इजी रहेगा। तो यहाँ पर इजीली निकले का मतलब ये मेटेलिक है, और ये साइड जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? ये तो एक ही बच्चे को समझा ना? चार्जर मेरे वहां लगा है, जल्दी दे। ओके, ओके, so next topic. So let's do the activity. You have understood what is a metallic character, what is a variation of metallic character down the group or left to right, है ना? Down the group metallic character increase होता है, left to right metallic character decrease होता है, राइट? अगर मैं बात कर रहा हूँ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। उसका अपोजिट याद रखने का। मेटेलिक डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो नॉन मेटेलिक क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। If you talk about period, so left to right, yeah, along the period, metallic character decreases, so non-metallic character will be increases. Understood? So here you can see over there, it is written metallic character down the group increases. So non-metallic character down the group क्या है? यहाँ पे increase हो रहा है, बराबर ना? तो इसका मतलब down the group non-metallic character क्या होगा? Down the group ये increase हो रहा है, तो non-metallic character क्या होगा? Decrease होगा। डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। अंडरस्टूड? नाउ लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर मेटेलिक डिक्रीज होता है तो नॉन मेटेलिक क्या होगा? इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? सिंपल याद रखो। ओके, एक्टिविटी नंबर 5.9। नाउ हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज इन द ग्रुप? ग्रुप के अंदर कैसे चेंज होती है? तो as we move top to bottom है ना, down the group या top to bottom बोलो, the tendency of losing electron is what? Increases, है ना? अभी मैं बताया कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। why increases? because as we move down the group the size of atom increases, therefore pull of nucleus to outermost electron decreases, as a result electron easily leaves out, right ना? इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाहर निकल जाता है, and therefore losing tendency increases. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया उसी के अंदर एक्टिविटी के अंदर? हाउ विल यू हाउ विल द टेंडेंसी चेंज इन द पीरियड? अब पीरियड में कैसे होता है? तो पीरियड में बताया था एज वी मूव लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जितना पुल है उससे यहाँ पे पुल जो है बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे पुल क्या रहेगा? हाई रहेगा। न्यूक्लियस का पुल यहाँ पे हाई रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का पुल क्या रहेगा? लो रहेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का पुल जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लो है, तो जिस तरफ पुल ज़्यादा रहेगा उस तरफ का इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल रहेगा। तो हम लोग वही बोलेंगे कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज राइट साइड में जब हम लोग जाएंगे तो टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज उस साइड में न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है। राइट साइड में, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, तो इसका मतलब राइट साइड तक जैसे पहुंचूंगा मैं तो राइट साइड में न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस का चार्ज कम है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर पुलिंग इंक्रीजेस, पुलिंग ऑफ nucleus to outermost electron increases, therefore
losing of electron tendency, tendency to lose electron decreases. Understood? Now variation of non-metallic character, so it is opposite to metallic character, so there is no need to explain again right now. समझ में आ गया होगा. नॉन मेटेलिक का क्या होता है? गेनिंग का इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? जैसे मेटेलिक कैरेक्टर क्या था? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर. तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो कौन गेन करेगा इजीली? कौन कम कौन? ऑब्वियसली जो मेटेलिक कैरेक्टर का कैरेक्टर था ना हमारा, उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना. कौन इजीली गेन करेगा, कौन इजीली लूज करेगा, वही बात है. अब यहाँ पे देखो, राइट. तो यहाँ पर सिंपल इसको अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो चल जाएगा. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज टोटली अपोजिट. पहले नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ गया क्या है? व्हाट इज इट इज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, राइट ना. राइट. कोई भी एलिमेंट जो है इजीली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो मैं बोलूंगा नॉन मेटेलिक है. इजीली लूज करेगा तो मैं बोलूंगा उसका मेटेलिक है. अंडरस्टूड? हाँ या ना? ओके, राइट. सो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो मेटेलिक क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था, तो नॉन मेटेलिक क्या होगा? डिक्रीज होगा. नॉन मेटेलिक क्या होगा? डिक्रीज होगा. सिंपल सी बात है बेटा. देखो, ये जो है न्यूक्लियस है, ये मेरा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है. नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ साइज बढ़ गया. साइज बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो इसको गेन करना क्या होगा? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करना, अंदर खींचना मुश्किल हो जाएगा. अरे हाँ या ना? एंड गेनिंग इज डिफिकल्ट. समझो एग्जाम्पल, इसको ही छोड़ दो, आउटरमोस्ट को छोड़ दो. न्यूक्लियस है, इसमें मैंने क्या किया? ये आउटरमोस्ट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया. अब ये इलेक्ट्रॉन डाला और दूसरा जो है वापस दे दो देते हैं. ये छोटा वाला देते हैं अपने पहले. ये छोटा है, ये आउटरमोस्ट शेल. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला मैंने, और ये बड़ा वाला, ये न्यूक्लियस, ये आउटरमोस्ट शेल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. कौन से इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी होगा? इसको या इसको? ऑब्वियसली इसको गेन करना ईजी होगा. अरे हाँ है ना? क्योंकि ये नज़दीक है. बट यहाँ पर इन दिस केस क्या होगा? इट इज़ वेरी फार फ्रॉम न्यूक्लियस. तो क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा. बिकॉज ये क्या है, इसको बहुत दूर है, तो इसको खींचना, न्यूक्लियस का पावर वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं. और पहुँचेगा ही नहीं तो उसको गेन कर पाएगा क्या? नहीं, इजीली गेन नहीं कर पाएगा. बिकॉज इजीली गेन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग वही बोल रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज वो इजीली नीचे वाला पार्ट जो है वो साइज बढ़ने की वजह से नीचे वाला एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पा रहा है. और जो जितना इजीली गेन कर पाएगा वो उतना मेटेलिक नॉन मेटेलिक रहेगा. बिकॉज ये इजीली गेन कर पा रहा है इसलिए ये नॉन मेटेलिक ज़्यादा है, और नीचे वाला नॉन मेटेलिक कम है. तो वही हम लोगों ने बोला, डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज. वाई? बिकॉज नंबर size of atom increases, and because of that electron what pooling decreases. Understood? अब लेफ्ट टू राइट बात करेंगे. लेफ्ट टू राइट में मैंने बताया था आपको, यहाँ की साइज थोड़ी बड़ी होती है लेफ्ट टू राइट में. ये थोड़ी बड़ी साइज ले लो और ये छोटी साइज ले लो. मेन फैक्टर तो ये नहीं है साइज का, मेन फैक्टर तो न्यूक्लियस से चार्ज का है, राइट. फिर भी साइज भी फर्क होता है, तो वो भी देख लो. अब यहाँ पे देखो, साइज में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला. कौन सा इलेक्ट्रॉन साइज के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है ना, तो मैंने ले लिया. बिकॉज यहाँ पे साइज बड़ी है तो अगेन ये वो दूर है तो इसको गेन करना मुश्किल है. यहाँ पर साइज छोटी है तो ये नज़दीक है, इसका मतलब इसको गेन करना ईजी है. तो गेन इजीली कर रहा है, इसके मतलब ये नॉन मेटेलिक ज़्यादा है और ये नॉन मेटेलिक लेस है. समझा हम लोग को? तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. एक और पॉइंट यहाँ पे आता है जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस चार्ज. मैंने बोला था एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोटॉन इंक्रीज होता है. प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा. और न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा. इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज समझो एग्जाम्पल +2 है, इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज समझो एग्जाम्पल +10 है. तो इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज +10 है, तो इसको गेन करने के लिए इसके चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये आराम से पुल करेगा. यहाँ पर इसको गेन करने के लिए इसको, ये न्यूक्लियस के पास चार्ज बहुत कम है, तो ये गेन कर पाएगा क्या? इजीली नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर ये इजीली गेन नहीं कर पा रहा है. यहाँ पे पुल न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा चार्ज है इसलिए क्या करेंगे? गेन कर पा रहा है. देयरफॉर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्या होता है? सिंस द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर पुलिंग इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूक्लियर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? Let's do the activity number 5.11.
5.11 क्या बोल रहा है? हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? अगेन गेनिंग का लेफ्ट टू राइट अभी बात किया। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज होती है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जाएंगे तो क्या होता है? बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, एंड न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो फिर गेन करना भी इजी हो जाएगा। गेन करना की टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। As we move left to right, the nuclear charge increases. As a result of that, nucleus tendency to gain the electron will be increases. Understood? समझा? बट इट डिक्रीजेज इन ग्रुप 18। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, ग्रुप 18 में ये डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि 18 में ना इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन लूज होता है, बिकॉज 18 भाई साहब जो है वो क्या है? स्टेबल है पहले से ही। If you talk about 18, group 18 element, like example, if I talk about helium, neon, what is the atomic number of neon? 10. 10. What is the atomic number? 10. What will be the configuration over here? 2,8. Since here octet is complete, so there is no need to gain the electron, no need to lose the electron. So therefore, this element does not lose or gain the electron, and therefore, if you try to gain the electron, right? इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे आप तो वो गेन ही नहीं करेगा, और गेन नहीं करेगा इसका मतलब वो उसकी जो है गेनिंग की प्रॉपर्टी क्या है? बहुत कम है। अंडरस्टूड? समझा? यस, ऑल ऑफ यू समझ में आया हम लोग को? प्लीज रिस्पॉन्स फास्ट करो। ओके, एक्टिविटी नंबर 5.11 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ वुड द टेंडेंसी ऑफ गेन, अभी डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होती है? तो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? तो साइज बढ़ता है। यहाँ पे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो उसको खींच नहीं पाएगा, तो गेनिंग की बात ही नहीं आती। स्टार्ट में ऊपर वाले एलिमेंट में साइज छोटी है, तो क्या होता है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नजदीक है, तो इसलिए वो आसानी से उसको पुल कर पाता है, और पुल करेगा तो गेनिंग ईजी हो जाता है। तो वही हम लोग को, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अंडरस्टूड? समझा बेटा? एनी डाउट इज देयर? अभी तक जो बोला गया समझ में आया? ओके, नाउ हियर क्या दिया हुआ है बेटा? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लास्ट समरी दी हुई है, लास्ट में समरी लिया गया है, समरी ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सो द मेन periodic table of the chapter is what? Modern periodic table. So what is the merit of modern periodic table? It is based on what? Atomic number, right? In this position of element is what? Related to what? Its configuration, means elements are positioned on the basis of electronic configuration, and third point is what? uh, if you see the periodic table, right, a modern periodic table, so the periodic properties shows casual what? Variation एट रेगुलर इंटरवल, राइट ना? हम लोग को देखिए डाउन द ग्रुप बढ़ता है, कम होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, कम होता है। तो ये एक पर्टिकुलर, जितनी भी प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है? वो वेरिएशन दिखाती है। एंड यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक पॉइंट क्या है? इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टूड। मैंडलीव का आपने देखा होगा टेबल कितना डिफिकल्ट लगता है समझने के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट बनाया है मैंडलीव में, उसको बहुत इजी वे में हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अभी तक हालांकि इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बता दिया है कि फर्स्ट पे रहेगा, ग्रुप 1 में रहेगा, बट ग्रुप 1 में रखने के बाद भी हम लोग को कभी भी कोई कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजन से भी मैच करती है, तो उसको हेलोजन के पास क्यों नहीं रखा गया? अब बहुत सारे ऐसे रीजन है कि उसका 1 पे पोजीशन जो है वो डाउटफुल है, कंट्रोवर्शियल है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेल्स टू एकोमोडेट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को उसने बोला कि जगह नहीं थी ना, अपने यहाँ पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है लेंथनम एंड एक्टिनम, राइट ना, ये एक सीरीज है पूरा, यहाँ इतनी बड़ी सीरीज है, तो उसको तो उसने जगह ही नहीं दिया। यहाँ पे उसने नहीं आए तो उसने क्या बोला? यहाँ से जो इतने 14 एलिमेंट, ये वाले 14, ये वाले 14 है ना, वो कहाँ पे रहेंगे? वो उसने नीचे नीचे एक टेबल बना दिया और बोला कि भाई ये ब्लॉक एफ ब्लॉक है, और ये जो है पूरे यहाँ पे आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये जो है गलत बना दिया ना। नॉर्मली अगर टेबल बनाएंगे तो टेबल में एक साथ होना चाहिए,
इसको जूम करके दिखा रहे हैं, ये तो रॉन्ग हो गया, तो वो चीज़ रॉन्ग है। तो फेल टू अक्यूमुलेट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब क्या, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट को उनकी पोजीशन देने में फेल हो गया, राइट ना। फ्यू एलिमेंट आर नॉट अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आई डोंट नो किसकी बात कर रहा है, बट आई थिंक सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अरेंज है। अंडरस्टूड, समझा? यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड और नॉट? And these are the summary of your what uh, properties what we have learned, right now. If you talk about shells, so down the group number of shell increases, left to right number of shell remain as it is. If you talk about valence electron, so left to right atomic number increases, so valence electron increases. Down the group valence electron remain as it is. Outermost electron, we are talking about outermost electron. Electronegativity down left to right increases, down the group decreases. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये सब नहीं है आपको, ये हायर डिग्री में शायद तो नहीं है। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सो दीज आर द समरी व्हाट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा? एक ही बच्चे को समझ में आया? यस, अदर स्टूडेंट्स स्वारंगी, मनस्वी, मैथिली, युवराज, any kind of doubt is there? So we have completed our periodic table, right? Our fifth chapter is also over. We have completed a whole portion of chemistry. Now, all portion means chemistry portion is completed. Now, tell me, any kind of doubt is there in previous chapters? Then let me know. We will discuss that. Otherwise, we will do it in next lecture. आपको अगर कोई डाउट आएगा तो आप क्या करेंगे, देवांशी मैम को बोलो कि सर ये लेक्चर में कोई डाउट है, प्लीज़ एक लेक्चर लगाओ, राइट ना। अगर आपको क्या करना है, पूरे पांचों चैप्टर पढ़ना है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल 5 चैप्टर, राइट ना। आफ्टर दैट ओनली कॉन्टेक्ट देवांशी मैम, एक ही लेक्चर में हम लोग सारे डाउट क्लियर कर लेंगे सारे चैप्टर के। देयर इज नो नीड टू टेक डिफरेंट लेक्चर फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, राइट ना। हम लोग को अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग लेक्चर लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए, एक साथ पांचों चैप्टर को गो थ्रू करो। एनी काइंड ऑफ डाउट